ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਕੈ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਮਤ ਪਿਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿਟੈ। ਤਨ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੋਚ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮਖੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਆਦਮਖੋਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਧਾਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮਾਨੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ ਆ ਗਏ। ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਪੰਡਿਤ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਆਣ ਕੇ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨਾ ਲਹੂ ਇਸ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ। ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ, ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈਕਾ ਖਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ 3 ਲੜੀ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਲ ਵਸਤਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਚਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਨ। ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੱਤਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਪਠਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਲੇਸ਼ ਧਨ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਕਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਆਪ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਗਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡ, ਆਪ ਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਅਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ, ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਰਬੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 4 ਵਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ।
ये बड़े लंबे समय तो साडे मन च कईयां दे शंके चलते आ रहे हैं, कौम दे विच दुविधा सी कि कुट्ठा नहीं खाना या मांस नहीं खाना। ये दो कॉन्सैप्ट हो गए ना। कुट्ठे का अर्थ हुंदा जिहड़ा कलमा पढ़ के मुसलमानी तरीके दे नाल जिहड़ा वो मांस तैयार कीता हुंदा है। एक मांस दूसरा है जिहड़ा आम मनुख तैयार करदा है। इहदे प्रथाए पिछले समय दे विच अकाल तख्त साहिब वल्लों जिहड़ा है वो फैसला कर दिता गया है कि मांस जिहड़ा वो खाना या ना खाना, इहदे विच गुरमत दा कोई सिद्धांत तुसीं खा सकदे ना खाओ। ये अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने कहा सिख नूं कुट्ठा खाण दी मनाही है। जो असीं गुरबाणी नूं डीपली वेखांगे ना डूंघाई दे नाल, चलो मेरा आई अज दा विशा नहीं, मैं बड़ी वारी अर्ज की है गुरमुखो दो चीज़ां ने। हुण इत्थे वो लोग सवाल करते हैं बाबा जी मांस खाना चाहिए कि नहीं, जिन्हां दा अंदरों चित्त ते करदा हुंदा लालां ते डिगरियां ने मांस वेख के खाण नूं, बस वो इजाजत मंगते पे ने माड़ा जो तुसीं हाँ करो उस वेले असीं खाण दा शुरू कर दईए। पर बाणी कहती तेरे अंदर जिहड़े दुनिया के बाकी रस टिके हुए ने ना, जे वो अंदरों नहीं निकलते तो मांस का रस भी उन्ना तेरे अंदर परमेश्वर का नाम नहीं जिहड़ा वो जुड़ सकता। सो मैं इस करके थोड़े जे ये हिंट दे दिता कि रहत मर्यादा ने भी जिहड़ा वो कुट्ठा खाण तो सानू सख्त मनाही की है। सतगुरु कह लगे ये अहलकार की करदा है, कहते अभाख्या का कुट्ठा बकरा खाना, कहते उहदा जिहड़ा सी बनाया होया मुगलों के कोल ये मुसलमानी तरीके दे नाल कलमा पढ़ के बकरा है। सतगुरु कहते उन्होंने चुप करके ते अंदर जाके बह के खा के आ गया। जो खा के आया घर आन के जिहड़ा सी मूँह हथ धोता रात नूं सौ गया तो सवेरे उठ के जिहड़ा है आन के अपना चौंका तैयार करता है। तो चौंका तैयार करके ये गल कहता चौंके उपर किसै ना जाना, कहता कोई मेरे चौंके के उत्ते ना पहुँच जाए। अगली पंक्ति पढ़ लीए दे कै चौका कड्डी घर, दे कै का अर्थ करांगे पोचा फेर के। ये पुराने समय कच्चे हुंदे सन तो पोचा फेर के उन्होंने सुच्चा किया जाना। पोचा फेरन तो बाहर एक मंत्र पढ़ के एक गोल लकीर खिंची जाती हुंदी सी, गोल कतारा कह लीए। वो इस करके खिंची जाती सी जिहड़ा साडा पकवान है, जिहड़ा साडा राशन है, उहदा स्वाद किते राक्षे ना लै जाण। इस करके ये जिहड़े लोग ने इन्हां दी मत है ये चौंके दे उत्ते लीक खिंचदे ने। मेरे सतगुरु कह लगे किहो जे पखंड करदा पिया है। मैं उस दिन भी कहा सी आपां ये पंक्ति बार बार लैके चलांगे शो डी लै पाखंड आ पखंड तू छड्ड दे। एक पासे लुक के तू बकरा खा के आ गया है, दूसरे पासे आन के कहना मेरा सुच्चा चौंका बड़ा सुच्चा है, चौंका बड़ा पवित्र है, कोई माड़ा बंदा आन के बैठ ना जाओ। सतगुरु कहते ये धर्म के नाम के उत्ते की पखंड करदा है। तो याद रखियो अज भी साडे धर्म दे विच भी इहो जिहे लोग ने जिहड़े रात नूं रज के दारू पींदे ने, बकरे खांदे ने ते सवेरे सब तो पहला मैक दे उत्ते स्पीच देंदे ने जी कौम डुੱਬ ਚੱਲੀ है फड़ के बचा लो। इहो ਜਿਹੇ लोगों तो बचो। गुरु साहब ने इक्को गल ही समझाई है कि जिहड़ा तेरा रूप है वो लोगों के सामने रख दे। मैं इत्थे एक गुरमुखों बेनती कर देवां, जे मनुख पापी है ना गुरमत ने उन्होंने दुरकारिया नहीं। गुरमत ये गल कहती है कि तू स्वीकार कर ला मैं पापी हाँ, तू लोगों सामने नहीं स्वीकार कर सकता, समाज तेनू नहीं बख्शेगा कोई गल नहीं, पर कला गुरु दे कोल आन के स्वीकार कर ली कि पातशाह मेरे अपराध ने मैं औगना दे नाल भरिया है। यकीन करके जाने गुरु पापी तो पापी मनुख नूं भी बख्श दिंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अजामल दा जिक्र नहीं, गणका दा जिक्र नहीं। गणका ने ये तो नहीं से कहा महापुरुख नूं कि बाबा जी मेरा जीवन बड़ा सफ, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कह दिता, कह लगी मेरा जीवन गरकिया होया है, भरिया होया है कुरीतियां दे नाल। अजामल ने भी इहो गल कही सी ते दोनों ने इक्को जवाब दिता सी तुसी राम दा नाम जपो। जे गणका तर सकती है, जे अजामल तर सकता है तो गुरमुखो एक गल याद रखियो, सिख दा जीवन मर्जी पापां जिन्नियां नाल भरिया होवे, जे आण के गुरु दे कोल प्रवान कर ले तो गुरु उन्होंने बख्श देवेगा। पर जे आण के असीं दोगलापन रखना है, अपने आप नूं सही साबित भी करी जाइए, बाणा भी धर्म दा पाया होवे, अंदर पाप भी कमाउंदे रहिए, इनू सतगुरां दी बाणी ने प्रवान नहीं किया। सतगुरु कह लगे ये दोगलापन छड्ड दे। इत्थे सतगुरु कह लगे तू की करदा है कि अंदर बैठ के मुगलों के नाल पार्टी करके आया, रज के शराब पीती, बकरा खा पी के घर आ गया, आण के सौ के तेरे घर दे विच जदों सवेरे ब्राह्मण आया तो मूँह मा हथ धोता, चूलियां चालियां कीतियां करके ते चौंका तैयार करके कहंदा है भी मेरे घर च सुआणी ने प्रशादा तैयार करना, वेखियो कोई माड़ा बंदा मेरे चौंके ते ना आ जाओ। सतगुरु कह लगे अभाख्या का कुट्ठा बकरा खाना, चौके उपर किसै ना जाना। अगे कह लगे देख के चौंका कड्डी कार, कहते वो चौंके नूं पोचा फेर के ऐन लकीर खिंची है। तो सतगुरु कहते पखंड वेखो इन्हां दा उपर आए बैठे
कूड़ेयार कहते वो झूठे लोग आन के बैठ गए जिन्हों ने धर्म का बुरका पा के ते धर्म का घान करना शुरू किया होया है। मैं एक बेनती करा, एक रुख बाहरों खलोता है, जे उन्होंने बाहरों कोई टक लाउंदा है ना रुख नूं, वो सानू नज़र आ जाता है कि ये रुख नूं टक लगा है, ये हौली हौली कट्टिया जा सकता है, ये हौली हौली डिग पवेगा, इस टक ज़्यादा वज चुका है। एक बाहरों रुख चंगा भला अंदरों घुन लग जाता है। याद रखियो घुन ज़्यादा खतरनाक है। वेखण नूं रुख बाहरों बहुत सोहना लगेगा, अंदरों लकड़ खाली हुई हुंदी है। जिस वेले हवा का झोंका आउंदा सारे का सारा रुख दड़ करके थल्ले आ जाता है। मनुख कहते चंगे भले नूं की हो गया, असल च उन्होंने घुन खा गया। कुछ लोग इहो जिहे ने जिहड़े धर्म नूं घुन दे वांग लगे हुए ने, जिन्हां ने अंदरों अंदरी सिद्धांतां नूं खा लिया, जिन्हां ने अंदरों अंदरी गुरु घर दीआं रौह रीतां नूं खा लिया, ते जदों उन्हां दा जीवन गरकदा है वो फिर नाल कईयां नूं लैके बहिंदे ने। सतगुरु कहंदे ये पखंड तू छड्ड दे, एक पासे तू बकरे खाना फिरदा है, कुट्ठा मांस खाना फिरदा है, एक पासे चौंका सुच्चा करदा फिरदा है। सतगुरु कहंदे आ पखंड वेखो, इन्हां दा उपर आए बैठे कूड़ेयार कहंदा जिन्हां दा अपना जीवन कूड़ दे नाल भरिया सी, जिहड़ा मनुख आप पापां दे नाल भरिया सी, वो लोकां नूं कहंदा कोई मेरे चौंके ते ना आ जाओ। सतगुरु कहंदे भलिया राती की करदा रहा है, रात ते बकरे खांदा रहा है, रात शराबा पींदा रहा है, रात कुकर्म करदा फिरदा है, तो हुण आण के तू चौंका सुच्चा करके बह गया। मैं बेनती करा, रात रज के शराब पीती, सवेरे देख करा के ते सुखमनी साहिब का पाठ कर दिता, की गुरु बख्श देवेगा। इस गल नूं जरूर याद रखियो, गुरु घर दे विच सिद्धांत प्रवान है। मैं पिछले समय एक दो बारी पहला भी बेनती की, लुधियाने विच ना दो भरा सन, वो पिछले समय गोली मार के आपस मर गए। उन्हां दीयां फैक्ट्रियां सन शराब दीयां, उन्हां दे एक अखंड पाठ साहब रोजाना रूटीन दे नाल जिहड़ा सी वो गुरु घर दे विच चलदा हुंदा सी। भोग पैना नाल ही दूजा शुरू हो जाना, भोग पैना नाल ही दूजा शुरू हो जाना। गुरमुखो एक गल याद रखियो, महीने च 14-15 अखंड पाठ हो गए कि गुरु 14-15 अखंड पाठां दे महीने दे नाल उन्हां दे पाप बख्श देवेगा। जिन्हां ने शराब पिया पिया के मावां दे पुੱਤ खोले, जिन्हां ने शराब पिया पिया के सुहागनां दे सुहाग खोले, जिन्हां ने शराब पिया पिया के बच्चे यतीम करते, भांडे घर दे भांडिਆਂ तक वेच विका दिते, तुहाडे कराए होए उत्थे पाठ की करनगे। एक गल याद रखियो, इंसानियत सब तो पहला है, तू धर्मी बाद दे विच बन। तू धर्म का बाणा पा के पाप करदा है, कित्थे बख्शिया जावेगा। रातां नूं शराबा पीना है, सवेरे जिहड़ा वो धार्मिक समागमां दे विच अगे जाके बैठा हुंदा, ऐ दाड़ा वा के गातरा उत्तों दी पा के लिशकदा पुशकदा अगे बैठा हुंदा, इहदे नाल दा धर्म ही कोई नहीं। सतगुरु कहंदे क्यों पखंड करदा है, एक पासे क्यों नहीं हो जाता, समाज गोली तो नहीं मारदे लगा। जे तू नहीं शराब छड्डनी, घट्टो घट्ट आ पखंड ते ला दे गल दे विचों। मैं मेरी गल का गुस्सा ना करियो, ये बाणा ते ला दे, घट्टो घट्ट गुरु के घर नूं तू बदनाम तो ना कर, इस सिद्धांत नूं बदनाम तो ना कर। सतगुरु कहंदे उपर आए बैठे कुड़ियार, ये कुड़ियार लोग बैठे हुए ने। साडियां वड्डियां वड्डियां संस्थावां अज तो कुछ सालां पहलां कईयां दे ट्रकां दे ट्रक शराब दे फड़े जाते रहे। तुसीं मेरा हिंट समझ गए होगे। तुसीं की समाज नूं सेहत देओगे, कि समाज के सामने जाके रखोगे। बड़िया वीडियो मिलदियां ने, कोई रागी है, कोई प्रचारक है, कोई किते शराब पींदा फड़िया जाता, कोई किसे पासे फड़िया जाता। जे नहीं तुहाडा चित्त इन्हां चीज़ां तुहाडा नहीं जी करदा पीण नूं, ते काम छड्ड दिओ, होर कोई कर लो। सो मैं बेनती करा, सतगुरु कहंदे ये कूड़ दा काम जिहड़ा सी वो वपार छड्ड दे, एक पासे हो जा, दोगली जिंदगी ना जियो। किन्नू धोखा देवेंगा। तो याद रखियो, जिहड़ा मनुख धोखा दिंदा है ना, वो किसी नूं नहीं, उन्होंने लगता मैं किसी नूं धोखा देना, वो अपने आप नूं धोखा दे रहा। मैं गल नूं नेड़े रखा। सतगुरु कहंदे आ पखंडियां दा जीवन जे, उपर आए बैठे कूड़ेयार। मैं उस वेले दी गल ना करा, अज साडी कौम दे विच इहो जे बहुत बहरूपीए ने, जिहड़े रज के वशाई ने, रज के विकार भोगदे ने, ते अगले दिन धर्म का प्रचार करनगे। जिन्ने डेरेदार ने, इन्हां चों तकरीबन जीवन उन्हां दा इहो जिहा ही है। सतगुरु कहणगे उपर आए बैठे कुड़ियार, ते आण के की कहिंदे ने, कहंदे मत भिटै वे, मत भिटै, यह अन्न साडा फिटै। कहंदे मतां कोई साडे चौंके ते आण के परछावां भी शूदर वर्गा पा दिओ, साडा जिहड़ा पकवान है, साडा जिहड़ा भोजन है वो फिटिया जाएगा, वो खराब हो जाएगा। सतगुरु कह लगे किहो जे पखंड दे विच आया है, तेरा अं परछावे दे नाल पकवान ते फिटिया जाता है, किसी का गरीब का हक मारन लग्या ये फिटिया नहीं गया। जे परछावे दे नाल फिटिया जाता है तो याद रखी कुरीतियां करन लग्या ये अन्न ना तेरा फिटिया गया। उस वेले तेरा अन्न कित्थे गया सी, उस वेले कमाई कित्ते गई सी। मत पिटै
वे मत पिटै यह अन्न असाटा फिटै। सतगुरु कह लगे तन फिटै फेड़ करेन। सतगुरु कहते भलिया तेरा तन तो आप फिटिया होया है, तन कुरीतियां दे नाल भरिया पिया है, विषय विकारां दे नाल भरिया पिया है। ते जेड़े विषय विकार तू भोगे ने धर्म का बुरका पा के भी अज ओहो ही हंकार रूपी विषय विकारां दे विच फिर खचता तन फिटै फेड़ करेन। सतगुरु कह लगे गां भी तू फिटे कर्म ही करता पिया है। जे पिछला हाँ गुरमत इस गल नूं मनदी है कि तू अवगण कीते ने पाप कीते ने, गुरु चरनां च अरदास गुरु बख्श देवेगा तो गां तू सीधे रस्ते ते पै जी। मैं दो उदाहरणां दे देना। एक तो गुरु साहब का बचन पढ़ते हैं जी, पिछले अवगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे, मालक मैनू अगे मार्ग पा दे। ये ना होवे कि उन्हां हिंदुआं वाला काम होवे कि एक भा लत्थी नात्यां दोए भा चढ़ीए सोर। ये ना होवे कि तू 6 महीनों बाद जाके गंगा इशनान करके आखें कि तीर्थ नहाए कहें सब उतरे। तू तीर्थ ते इशनान करके कवें पाप अज तो खत्म सवेर तो फिर। साडे इदां ही हुंदा है, महीने बाद साल बाद घर दे विच महाराज दा स्वरूप लैके खंड पाठ करा लिया, सुखमनी साहब करा लिया, अजे सुखमनी साहब का पाठ हो के समाप्ति हो के स्वरूप गुरु घर दे विच जांदा ते बोतलां नाल ही शराब दियां खुल जांदियां ने। सतगुरु कहंदे इन्हां किन्ना सिद्धांतां दे विच तुसीं बैठे हो जे, इहदे विचों बाहर निकलो। दूसरी उदाहरण भाई गुरदास जी की दे देना कि पापी तो पापी बख्शिया जाएगा जी वो गुरु का नाम जप के ते तोबा कर लवेगा, गां तो सुधरन का वादा करता है। वो असी बचन पढ़ते हैं जी, हाँ अपराधी गुनाहगार हाँ बेमुख मंदा, चोर जार जुहार हाँ पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार करंदा, कहने के विश्वास करती अकिरत कन मैं को न हर हंदा। ये 20 अवगुणा गना के भाई साहब जी कह लगे सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा जी। इन्ने पाप ने तां भी गुरु अगे आन के फरियाद करी, गुरु तेनू बख्श देवेगा। तू आन के फरियाद तो कर, पर तू तो धर्म का बाणा पा के जिहड़ा वो गुरु नू भी छलन का यतन पिया करदा है। तू हर पासे जिहड़ा वो अपना इउं कह लवां कि धोखे धड़ी दे विच ये तुरिया फिरदा। याद रखी लोकां नूं छल सकदा है, गुरु नूं नहीं छल सकदा। गुरु अगे अरदास कर मेरे राम यह नीच कर्म हर मेरे। अरदास कर कि जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। अरदास कर कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़, बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई। तू अरदास कर गुरु तेनू बख्श देवेगा। पर एक पासे तू पाप करके ते अरदासां ये आण के करदा। मैं बेनती करा गुरमुखो, कसूर ताड़ी एक हाथ दे नाल नहीं वजदी। मैं परसों भी कहा सी कमाई किधरों किन्नू आउंदी असी कदी नहीं जे पुछदे। जदों मेरे वर्गा कोई अरदास करदा है ना ते मुठ दे विच जिन्ने हुण पैसा चंगा मोटा मारिया उन्हें भेटा भी तो सानू वाधू देनी ना। एक गरीब बंदा अरदास कराउंदा है जिहदा लून तेल नहीं पूरा हुंदा, तुहानू अरदास भेटा कित्थों दे देगा? किते मर खप के जे दे देगा 150 दे देगा। हुण उन्हें जिन्हें 150 दिता उहदी अरदास कर दित्ती, अरदास करके काम वेला हो गया। हुण दूसरा मनुख आउंदा है जे मुठ दे विच 500 रुपया दिंदा है, 1000 दिंदा, 2000 का गुलाबी अजकल नवां नोट है वह हत्थ च आउंदा है। फिर अरदासिया भी बस मैं ना भी वो रब तो तां बंदे नूं लै जांदे जी, ये गुरमुख पूरे ने फलाना जी ढमकाना जी, इन्हां आ भी कारोबारां च तरक्कियां। मैं बड़ी बड़ी सोचदा ना कारोबारां च तरक्कियां दा की भाव है। एक मनुख शराब का काम चलदा है, एक चिट्टा वेचदा पिया है, एक दा घर विषयी खाना बनया पिया है। असीं ये अरदास करदे भी इन्हां दा कारोबार आ वध चले। जरूर सोचीए तू पुट्ठे काम करने दे करी जा, पर गुरु कोल इहो जिहियां अरदासां तां ना आण के करा भी मेरे कारोबारां च वाधा होवे। वो मेरे वर्गे नूं 2000 दी दा हुंदा है, असीं भी बस लै दे के दे अरदास ते अरदास दे अरदास दे अरदास बंदे नूं रब तक पहुँचा दिंदे आ। पर एक गल याद रखियो, गां आउण वाले बचनां दे विच बचन आवेगा कि वड्डियां हत्थ दलाल के मुसफी ये करे। इहो जे साडे वर्गे अरदासियां दे भी हत्थ वड्डे जाने ने, ये आपां गां वाचांगे। इत्थे सतगुरु कहण लगे कहंदे किहो जिहा पखंड करदा है, कहंदे तन फिटै फेड़ करेन, अपना तन तेरा विकारां दे नाल भरिया पिया है, अजे भी नहीं सुधरदा, अजे भी हंकार वर्गे विकारां दे विच फसिया होया, अजे भी ईर्खा दे विच फसिया होया है, अजे भी मोह माया दे विच फसिया होया है। सतगुरु कह लगे मन झूठा है चुली भरेन, कहंदे मन तेरा झूठा है ते भर भर के चूड़ियां जिहड़ियां मूँह दे विच पा पा के कुरलियां करदा कि शायद मेरा मूँह सुच्चा हो गया।
याद रखियो गुरमत दे विच सुचमता दा नहीं, गुरमत दे विच सफाई दा कॉन्सैप्ट है। एक गल याद रखियो, सतगुरु कह लगे मन झूठा है चुली भुरे ने, मन तेरा झूठा है तो मूँह दियां कीतियां होईयां चुलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ये प्रवान नहीं होणीਆਂ। इत्थे गुरु नानक साहब का एक बचन, गुरु ग्रंथ साहब का एक बड़ा प्यारा बचन है, कह लगे नानक चुलियां सुचियां जे भर जाना है कोई। सतगुरु कह लगे चुलियां सुचियां हो सकदियां ने जे किसी नूं करन दी जाच आ जे। ये याद रखियो। एक ठीक है असीं ब्रश करना है, ये सानूं डॉक्टर कहिंदे ने क्योंकि असीं अपने दंदां नूं बचा के रखना है। अज तो डॉक्टर ये गल कहिंदे तुसीं खाना खा के ब्रश करो, बड़ी चंगी गल है क्योंकि दाढ़ां 'च फसिया फुसिया जिहड़ा वो भी निकल जाता है। खाना खांदे जे पहला हथ धोवो, खांदे जे फिर हथ धोवो, ये सफाई का कॉन्सैप्ट है। क्योंकि बहुत जड़े ने वो किरम जड़े ने साडे अंदर खाने हथ धोण तो बिना जो असीं खाने अंदर जा सकते हैं, पर हथ इस वास्ते धोने कि हथ सुच्चे कर लिए। याद रखियो शरीर कभी सुच्चा नहीं हो सकता। 9 दवारे ने, 9वें दवारे ही रिसते रहते हैं। तुसीं आ हुण एसी च बैठे जे ना, 5 मिनट एसी बंद कर दिओ, हथ तुहाडा पसीने दे नाल भर जाएगा, कित्थों सुच्चा कर लोगे? 5 मिनटां बाद जाके धोन जाओगे। हथ सुच्चे नहीं हो सकते, हथ साफ हो सकते हैं। मूँह सुच्चा नहीं जे हो सकता, मूँह साफ हो सकता है। मैनूं इत्थे एक गल याद आ गई, एक मनुख सी, चलो बनाया तो एक ढोंग जिहा ही है। वो कहन लगा, उन्हें 2 जाने प्रशादा छकते सन, मेरे वर्गा लागे एक पखंडी बाबा सी, यार दोस्त मित्र सी। उन्हें प्रशादा पानी छकिया, वेलिया होया तो मनुख ने की कीता, कहंदा जी जिहड़ा उहदा दोस्त सधारण जिहा, उन्हें चूली भरी तो भर के वो जिहड़ा मनुख ते चूली कर दी, पानी जिहड़ा सी मूँह चों कड्ढिया ते उहदे उत्ते रोड़ दिता। कहन लगा मेरे ते जूठा पानी पाता ही। कहंदा जी गलती हो गई। कहंदा तैनूं एक गल दसो जूठा किवें आ? कहंदा तू प्रशादा छकिया तेरा मूँह जूठा सी। कहंदा अच्छा चलो। कहंदा मैं जूठे मूँह दे नाल चूली मार दी, मेरे को गुस्ताखी हो गई। उन्हें फिर पानी की घुट भरिया, चूली करके बाहर सुट दी। कहंदा मूँह सुच्चा हो गया। हुण असीं ते इहो चूलियां समझदे हैं ना। कहंदा हाँ हुण तेरा मूँह सुच्चा हो गया। कहंदा हुण तो नहीं जूठे वाला कॉन्सैप्ट। कहंदा नहीं। उन्हें फिर चूली भरी, फिर मार दी। कहंदा हुण कातों मारी है? कहंदा मैं सुच्ची धो दी, जिहड़ी पहला जूठी मारी सी सुच्ची धो दी। मेरे कहण दा भाव मूँह कदी सुच्चा नहीं हुंदा, इन्हां वहमां भरमां चों निकल जाया करो। मूँह साफ हुंदा है, दातन कर लो, ब्रश कर लो, मूँह सुच्चा नहीं होना। हाँ मूँह सुच्चा होवेगा गुरु के शब्द के नाल होवेगा, रसना सुच्ची होवेगी बाणी दे नाल होवेगी। पानी दे नाल मूँह सुच्चा हुंदा ते मछलियां कदे दियां सुच्चियां हुंदियां, रहिंदियां ही पानी दे विच ने। तुसीं मछली दा जीवन वेखो, मैं अपने विषय तो बाहर ना जावां। ये मछली मूँह मारती रहिंदी है पटक पटक, तो वह इधर साइडा तो कन्ना जे तो लगो पानी निकलता रहिंदा है। मच्छी उदों पानी नहीं पींदी, कई बार सानू लगू भी ये तो आफर जे पानी पी पी के, वो जीवन है। पानी उदों पींदी जो उल्टी छाल मारती है, उदों दे पेट च पानी जाता है। वो पानी पी जाती है, साइडा तो निकलता जाता है। तो जे चुलियां करन दे नाल सुच्ची हुंदी तो मछली तो कदे दी सुच्ची दी, जिहड़े खांदे पींदे ने वो भी सुच्ची हो जाते। सो इन्हां भुलेखियां चों निकलीए। मूँह सुच्चा हो सकता है शब्द दे नाल हुंदा है। सतगुरु कहते तू नाम जप बाणी पढ़, रसना तेरी सुची बजे हो जाएगी। सूची भई रसना नाम जो जपत गोबिंद का, उस परमात्मा का नाम जप के ये रसना सुची हो जाती है। जे हाँ तुसी धर्म के नाम के बुरके थले ये गल कहो जी मेरा तन सुच्चा हो गया, हाथ सुच्चे हो गए, मूँह सुच्चा हो गया, तन सुच्चा होगा नाम जपन दे नाल, मन सुच्चा होगा नाम जपन दे नाल, मुख सुच्चा होगा नाम जपन दे नाल। नाम तो बिना नहीं जे कदी सुच्ची हो सकते। सतगुरु कहन लगे मन झूठा, कहते मन दे विच ते झूठ भरी पई है, मन झूठा है चुली भरेन। हुण चुलियां करन दा की फायदा है? तू कहना मूँह चों खाधियां होईयां रोटियां दे जिहड़े बुरके सन लगी हुई दंदां नाल सब्जी वो लथ गई। पर एक गल याद रखी, जिहड़ा पराया गरीबां दा हक मार के जिहड़ा सी राक्षा वांग खा गया, वो अंदरों तेरे कौन कड्डेगा? कदी मन च सोचिया करो भी प्रशादा छकिया, कुछ जिहड़े टुकड़े ने, कुछ अंश सब्जी ते प्रशादे दे दंदां दे नाल लगे, चूली करके बाहर सुट दिते, मूँह साफ हो गया। हुण जिहड़ा अंदर खाना चल गया वो तो गरीबां दा सी, उहनूं तेरे हर संग च हथ पा के बाहर कड्ढीए। जे मूँह दा खाना चूली दे नाल बाहर निकलदा है तो जिहड़ा तू हराम दा पैसा खा गया, गरीबां दा खो खो के खा गया, उहनूं बाहर किन्ने कड्ढना है? सो इस करके सतगुरु कहते मन दा झूठिया चुलियां करदे नाल सुच्चा नहीं होना। मन झूठे चुली भरेन। पर अगे सतगुरां ने सिद्धांत बिल्कुल ही बदल दिता, क्योंकि ये सलोक चल रहा, मैं थोड़ा जिहा ध्यान दे के समाप्ति करावां। सलोक है जी, सतगुरु कह लगे मानस खाने करें नवाज शुरी वगायन,
तीन गल ताकत कई बारी मन च आ जाएगा तो सतगुरु तो निंदे ही करते जाते हैं, गल नूं हरेक गल नूं कट्टी जा रहे हैं, दलील दे के हरेक चीज़ नूं गट्टी जा रहे हैं। सतगुरु कह लगे भलिया मैं तां कट्टदा सा, कहो नानक एक गल चेता रखी, सच धियाई है। कहते तू संतरी है, तू मंत्री है, राजा है, वजीर है, कोई भी जीवन दे विच तू अहुदे दे उत्ते है, तू उस सच परमात्मा नूं ध्यान दा यतन कर। अगली पंक्ति दे अर्थ ध्यान दे नाल सुन लियो, कहो नानक सच धियाई है। सतगुरु कह लगे उस सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरू नूं सिमरना चाहिए है, पर फायदा कदों होएगा? कह लगे सुच होवे तां सच पाईए। ये दो अर्थ किए जाते हैं, ये मैं तां थोड़ा जिहा इहदा जिक्र कर दिता। जे तो इस पंक्ति नूं तुसीं व्याकरणक निजम दे नाल पढ़ोगे फिर इहदा विश्राम लगेगा जी, सुच होवे तां सच पाईए। इहदा प्रोफैसर साहब सिंह हुणा ने व्याकरणक निजम दे नाल इहदा अर्थ ये कीता है कि अंदर दे सुचमता तां होवेगी जे तेरे हिरदे दे विच सच आण के टिक जाएगा। सुच होवे तां सच पाईए, ये व्याकरणक इहदे अर्थ ने। फिर सुनियो, व्याकरणक दे तरीके दे नाल भी पूरे फिट बैठते हैं। मैं कट नहीं किसी नूं रिहा, सिर्फ तुहानूं एक गल समझा रहा। सच नूं प्राप्त करेगा तां ही अंदर सुचा है, गल ये भी सही है। जिहड़े संप्रदाय साडे महापुरख ने वो इहदा विश्राम लाउंदे ने जी, सुच होवे तां सच पाईए। वो कहिंदे जे हिरदा सुच्चा होवेगा तां सच की प्राप्ति होनी है। गल्लां दोवें पासे फिट जापदियां ने, दोवें अर्थ ठीक ने। मुक दी गल इत्थे है, जिस दिन हिरदे दे विच सुचमता आ गई सच नूं प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन सच अंदर आ गया सुचमता आ जाएगी। आनंद साहब दीयां दो पौड़ियां ने, जियों मैले बाहरों निर्मल, बाहरों तो निर्मल जियों मैले तिनी जन्म जूए हारिया। एक दूसरी आपां पौड़ी पढ़दे हैं, जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों तो निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी। जिहदे अंदर सच टिक जाता वो अंदरों भी सुच्चा, वो बाहरों भी सुच्चा हो जाता जे। जिहदे अंदर सच ना टिके ना वो अंदरों सुच्चा हो सकता है, तो ना वो बाहरों सुच्चा हो सकता है। सो सतगुरु जी सानू अखीर ते ये गल समझाउंदे ने, क्योंकि कल नूं इहदे आपां पौड़ी दे अर्थ वाचांगे। भलिया तेरा अहुदा कोई भी है, कर्म कोई भी ने, बस तू ओह सलोक की मैं फिर गल करा, छोडी लै पाखंडा पखंड छड़ दे। जिहड़ी मैं पहलां गल कीती, एक पासे हो जा। जे तू धर्मी बनना है, इहो जिहा धर्मी बन कि तैनूं दस्सण दी लोड़ ना पवे तू धर्मी है, तेरा जीवन बोलदा होवे। पापी बनना है वो तो सानूं सारिआं नूं अगे पता ना, पर धर्म दा बुरके दे थल्ले तू पाप ना कर, वो कदी नहीं बख्शिया जावेगा। क्यों? क्योंकि अन काए रातड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमावदिया तेरा कोई ना बेली। उत्थे नहीं लिखिया भी तू गुरु घर आउना तो तेरा गुरु बेली हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, किसी ने हामी नहीं भरनी। मैं परसों भी क्या सी, हक पराया नानका उस सूर उस गाय गुर पीर हामा तां भरै जा मुरदार ना खाए। तू हक मार के किसी का आण के 100 इत्थे दे के अरदास करा देगा, गुरु बख्श देगा। गुरु ने तेरे 100 नूं की करना, हज़ारां नूं की करना। जिन्हां नूं गुरु ने पैदा किया होया जी उन्हां नूं तू भुखिया मार के आण के किनूं खुश करदा फिरदा है। सो एक गल याद रखियो, कहो नानक सच धियाई है। सतगुरु कहते आ पखंड छड्ड के सच दे नाल जुड़ जा, सिमरन करना शुरू कर दे। सुच होवे तां सच पाईए, पर सच की प्राप्ति तां है जे आप पखंड छड्डेगा, जे अंदर दियां कुरीतियां छड्डेगा, अंदर सुचमता आ गई तो तू उस सच परमात्मा नूं प्राप्त कर जावेगा। सो ये सी दो श्लोकां दी विचार। अगे पौड़ी दे विच सतगुरु दसणगे कि तू चंगा है तू माड़ा है, ये ना सोची पाप करके बच जावांगा। चित्त अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, ये आपां कल वेखांगे। परमात्मा की नज़र दे विच चंगे ते माड़े किवें प्रवान हुंदे ने ते किवें उहदे दर तो जिहड़े वो दुरकारे जांदे ने। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां भुल्लां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। कहो नानक सच धियाईऐ, सोच होवै तां सच पाईऐ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।